Hello students, I hope all of you are doing good. Let's start today's chapter. Internet ethics and a safeguard. Learning objectives. Internet, potential threats on webs and role of parents and teachers. Internet. Internet, also called net, is one of the largest networks that links millions or trillions of computers all over the world. You can access this network via communication devices and media such as modems, cables, telephone lines and satellites. Through the internet, you have the access to information from all around the globe. The internet enables you to read the latest news, do research, shop, communicate, listen to music, play games and access a wide variety of information. Internet has truly revolutionized the means of communication. Any person who gets connected to the internet gets connected to you. You can communicate with anyone on the internet. It touches the lives of everyone. Internet, जिसे हम नेट भी कहते हैं, आपको पता है कि लार्जेस्ट नेटवर्क है जो मिलियंस और ट्रिलियंस कंप्यूटर्स को लिंक करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? आप इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू, जैसे कि मॉडेम्स हैं, केबल्स, टेलीफोन लाइंस या फिर सैटेलाइट्स. इंटरनेट के थ्रू देखिए आज के टाइम पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब. ओके, इसके आप देखिए कोई भी आपको लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए, आपको रिसर्च करना है, शॉपिंग करना है, कम्युनिकेट करना है, म्यूजिक सुनना है, गेम्स खेलना है, पिक्चर्स देखनी है, तो मतलब आप सब नेट के थ्रू ये सारा पॉसिबल हो पाता है. ओके, तो इंटरनेट ने मतलब एक बहुत बड़ा ये रेवोल्यूशन लेके आया इन द मीन्स मास ऑफ कम्युनिकेशन में, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, राइट? तो कोई भी पर्सन जो है वो कनेक्टेड रह सकता है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू. पोटेंशियल थ्रेट्स ऑन वेब. Cyber crimes are those instances when a person illegally accesses your computer for malicious reasons. Given below is a list of the different types of threats that are there along with some recommended precautions you can take to protect yourself. Okay. अब देखिए नेट के साथ साथ आपके थोड़े जो है बहुत सारे different types of threats भी जुड़े हुए हैं. साइबर क्राइम जो एक आपका होता है फ्रीक्वेंटली, ये आपके वो इंस्टेंसेस है जब कोई भी पर्सनल जो इलीगली आपके कंप्यूटर का एक्सेस उसको मिल जाता है किसी भी मैलिशियस रीजंस के लिए. ओके, तो देखिए सबसे पहले स्पाईवेयर. Spyware is a software program that gets installed on your computer without your knowledge or consent. It gets downloaded from websites, email messages, instant messages, or direct file sharing connections. It can also enter in your computer while installing a software. This program secretly gathers data from your computer, steals your passwords, displays unwanted advertisements, and takes control of your web browser. ओके, स्पाईवेयर आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है आपकी नॉलेज के बिना. ओके, और ये आपका जैसे वेबसाइट से डाउनलोड हो जाता है या इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू या ईमेल मैसेजेस के थ्रू आपके कंप्यूटर में. ये जब जैसे आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी आपके कंप्यूटर में पहुंच सकते हैं. ये क्या करता है, ये प्रोग्राम आपका जो डेटा होता है उससे सीक्रेटली गैदर करता है, आपका पासवर्ड चुराता है, अनवांटेड एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले करता है और आपके वेब ब्राउजर का कंट्रोल ले लेता है. ओके, प्रिकॉशंस. यूज एन इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम स्पाईवेयर एंड अदर सिक्योरिटी रिस्क. Install a personal firewall software that protects network resources from outside intrusions. Do not accept or open any doubtful error dialogues from within the browser. Do not accept free deals because spyware may come as a part of free deal offer. Always read the end user license agreement carefully at the installation time and cancel if other programs are being installed as part of the desired program. Okay, तो precautions आपको क्या रखने हैं, हमेशा आपने इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोग्राम का यूज़ करना है कंप्यूटर को स्पाईवेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, फायरवॉल को इंस्टॉल करना है, कभी भी कोई भी जो डाउटफुल एरर डायलॉग उसको एक्सेप्ट या ओपन नहीं करना है, और हमेशा जो आपके जो फ्री डील्स हैं उनको एक्सेप्ट ना करें क्योंकि जो स्पाईवेयर होते हैं वो फ्री डील ऑफर का ही पार्ट बनकर आते हैं. हमेशा जो आपका एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट है उसे ज़रूर रीड करें जब भी इंस्टॉलेशन का टाइम हो. ओके, और कैंसिल कर दे अगर दूसरे प्रोग्राम्स भी इंस्टॉल्ड हो रहे हैं उस डिजायर्ड प्रोग्राम के पार्ट के रूप में. ओके, नेक्स्ट इज पॉपअप एड. पॉपअप एड इज एन एडवर्टीजमेंट दैट डिस्टर्ब्स योर वेब ब्राउजिंग बाय अपीयरिंग इन अ सेपरेट ब्राउजर विंडो ऑन द टॉप ऑफ योर करंट विंडो. Pop-ups are irritating and may also be dangerous because clicking items in the pop-up window can cause spyware or viruses to be installed on your computer. Precaution: you can use a pop-up blocker to block such ads in the browser.
ओके, पॉपअप ऐड आपने देखे होंगे, एडवर्टीजमेंट होते हैं जो आपकी वेब ब्राउजिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि ये आपके सेपरेट ब्राउज़र पे अपीयर होते हैं। ओके, तो बड़े इरिटेटिंग होते हैं ये पॉपअप्स, और डेंजरस भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इन आइटम्स पे क्लिक कर दिया जो पॉपअप विंडो में, तो हो सकता है स्पाईवेयर या आपका जो वायरस है आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाए। तो आपने प्रिकॉशन क्या रखना है, आपने यूज़ करना है पॉपअप ब्लॉकर, जो ऐसे एड्स को ब्राउज़र में ब्लॉक करते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्पैम। Email spam, also known as junk mail, involves sending unwanted messages by a spammer to a large number of recipients. It can be used to deliver emails that contain viruses and targeted attacks aimed at obtaining sensitive personal information. Some spam may include hidden text that becomes visible only if you highlight the content. It is a common trick that spammers use to get their email to pass through spam filters without detection. Precautions: sign up for email filtering through your ISP or use an anti-spam program. Do not click links in spam or reply to spam for any reason. If you suspect an email to be spam, do not respond, just delete it. Keep your security software up to date. Okay. ईमेल स्पैम को जंक मेल भी कहा जाता है। ओके, इसमें मतलब जो स्पैमर होता है अनवांटेड मैसेजेस भेजता है बहुत सारे रेसिपेंट्स को। ओके, और मतलब ये जैसे आपके वायरसेस हैं इनको डिलीवर करने का भी काम करता है। ओके, और या तो अटैक्स को टारगेट करते हैं, मतलब जैसे किसी की सेंसिटिव या पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी की चाहिए। कुछ स्पैम में हिडन टेक्स्ट होता है जो कि विजिबल होता है जब आप कंटेंट को हाईलाइट करते हैं। तो ये कॉमन ट्रिक है जो स्पैमर यूज़ करते हैं, उनको मतलब अपना ईमेल मिल जाता है ओके स्पैम फिल्टर्स के थ्रू विदाउट डिटेक्शन, राइट। तो प्रिकॉशन क्या है, सबसे पहले तो ईमेल फिल्टरिंग के लिए साइन अप करें थ्रू योर ISP या फिर एंटी स्पैम प्रोग्राम को यूज़ करें। लिंक्स जो होते हैं आपके स्पैम में उस पर क्लिक ना करें, कभी भी रिप्लाई ना करें स्पैम को। अगर आपको लगता है कि ईमेल स्पैम है तो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है, उसको डिलीट कर देना, और अपना सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो है उसे अप टू डेट रखें। ओके, फिशिंग। Phishing is a scam in which you will receive an official or legitimate looking email message that attempts to obtain your personal or financial information. These messages request you to update your credit card number, bank account number, password, or other private information. Phishing scams can be executed via email, messages, websites, and even on the phone. Phishing देखिए आपका स्कैम है जिसमें आपको कोई आपको ऐसा लगता है कोई ऑफिशियल या लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल है ओके जो जिससे वो आपकी फाइनेंशियल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं। तो ये मैसेजेस आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर अपडेट कर दीजिए, अपने बैंक अकाउंट नंबर को अपडेट कर दीजिए, पासवर्ड या दूसरी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। तो फिशिंग स्कैम्स को ईमेल्स मैसेजेस के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है, वेबसाइट्स के थ्रू एंड इवन ऑन द फोन। ओके, precautions: if you receive an email from someone requesting you to verify online account or financial information, do not reply. If you receive a phone call from someone claiming to be from a legitimate company or bank, record caller name and the time of the call. Do not disclose personal or financial information to the caller. Never click on links in email messages even if you know the sender. While visiting a bank's website that requires you to enter confidential information, make sure to type the web address correctly. Typing it incorrectly may take you to a phishing website where the information you enter can be collected by an unknown party. Enable phishing filter in your browser that warns or blocks you from suspicious websites. Okay, जैसे कि आपको कोई आप ईमेल रिसीव कर रहे हैं ओके जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपना ऑनलाइन अकाउंट वेरीफाई कर दीजिए या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर दीजिए, डू नॉट रिप्लाई। ओके, फ़ोन कॉल आता है आपको किसी की तरफ से और कहता है कि मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, किसी कंपनी का नाम लेके या बैंक से ओके तो रिकॉर्ड करें कॉलर का नेम और अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी उस कॉलर को डिस्क्लोज ना करें। कभी भी लिंक्स पे ना क्लिक करें जो आपकी ईमेल्स में आए हैं, इवन इफ यू नो द सेंडर, राइट। जब भी आप बैंक की वेबसाइट को विजिट करना चाहें तो मेक श्योर कि आप जो कॉन्फिडेंशियल आपने जो वेब एड्रेस है वो करेक्टली टाइप किया है। अदरवाइज अगर आपने इनकरेक्ट टाइप किया है तो आप फिशिंग वेबसाइट पे आप जा सकते हैं ओके और फिर कोई अननोन पार्टी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लेगा। और इनेबल कीजिए फिशिंग फिल्टर को अपने ब्राउजर में जो आपको वार्न करते हैं सस्पिशियस वेबसाइट से या ब्लॉक करते हैं। ओके, Viruses are programs which are created deliberately to damage data.
A virus can badly affect or infect your computer without your knowledge. Once a virus in your computer, your files and operating system may be damaged. Viruses usually enter into your computer when you open an attachment, email attachment or download data from web. वायरस आपके वो प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें जानबूझकर क्रिएट किया जाता है आपका डेटा को डैमेज करने के लिए. तो वायरस आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है, ओके, बिना आपके नॉलेज के. एक बार वायरस अगर आपके कंप्यूटर के अंदर चला गया तो आपकी फाइल्स और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है, ओके. तो वैसे वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर कैसे करते हैं? जब आप ईमेल अटैचमेंट को ओपन करते हैं या कोई भी डेटा आप डाउनलोड करते हैं वेब से, ओके. प्रिकॉशंस: open only those email attachments that come from trusted sources and are expected. उन्हीं ईमेल अटैचमेंट्स को आपको ओपन करना चाहिए जो किसी ट्रस्टेड सोर्स से आए हैं और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड भी हो, ओके. Delete all unwanted emails without opening. Do not click on web links sent by someone you do not know. Install an antivirus program and keep it updated. Scan all files with an antivirus program before transferring them to your system. ओके, जितनी भी अनवांटेड ईमेल्स आप इन्हें डिलीट कर दीजिए बिना खोले और उन वेब लिंक्स पे बिल्कुल भी ना क्लिक करें जो ऐसे पर्सन ने आपको भेजे जिसे आप जानते ही ना हो, ओके. एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल करें और साथ ही साथ उसको अपडेट भी रखें. जितनी भी फाइल्स आती हैं उनको एंटीवायरस प्रोग्राम से आपने स्कैन करना है बिफोर ट्रांसफरिंग देम टू योर सिस्टम, ओके. नेक्स्ट, की लॉगर्स. अ की लॉगर्स इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट गेट्स इंस्टॉल्ड वेरी इजीली and is often found on public computers. It records keystrokes you make to enter the data in the computer in a hidden file. Keyloggers आपके क्या होते हैं? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि बहुत ही आसानी से आपका इंस्टॉल हो जाता है और आपका जनरली पब्लिक कंप्यूटर्स में पाया जाता है. ये की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं. जैसे आप डेटा को एंटर करते हैं ना तो की स्ट्रोक को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ओके, एक हिडन फाइल में. Precautions: avoid checking your email or performing bank activities on public computers. These computers may be running keyloggers, which record keystrokes in a hidden file or those other tracking software. If you use a public computer for critical activities, be certain to sign out of any password-protected website and to clear the browser history. सबसे पहले तो आप ईमेल को अवॉइड करें चेक करना और कोई भी बैंक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना किसी भी पब्लिक कंप्यूटर में, ओके. क्योंकि हो सकता है मैं की लॉगर्स हूँ जो कि आपकी की स्ट्रोक को रिकॉर्ड कर सकते हैं हिडन फाइल में. अगर आप पब्लिक कंप्यूटर को यूज़ करें किसी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए तो जब आप बी सर्टेन टू साइन आउट ऑफ, ओके, आपको साइन आउट ज़रूर करना चाहिए किसी भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट से और ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लियर ज़रूर करना चाहिए, ओके. नेक्स्ट, मैनेज पासवर्ड. When you add username and password to log in your account in a particular website, web browser sometimes displays a prompt message that offers to remember that password you have typed. If you click on yes, then access the website in future. The web browser bypasses the login page and takes you directly to the site. Therefore, anyone who uses your computer can also access to your account from the site. Precaution: always click on no when your web browser prompts to remember the password. देखिए, जब भी आप यूज़र नेम ऐड करते हैं, पासवर्ड ऐड करते हैं अपने अकाउंट में लॉगिन करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट में, तो वेब ब्राउज़र कई बार एक प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले करता है कि टू रिमेंबर द पासवर्ड, ओके. तो अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो फिर जो वेबसाइट है फ्यूचर में इसको एक्सेस कर सकता है. वेब ब्राउज़र फिर क्या करेगा? बाईपास करेगा लॉगिन पेज को और फिर डायरेक्टली उस साइट पे लेके जाएगा. इसीलिए कोई भी आपके कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है और उसको एक्सेस कर सकता है आपकी साइट से, ओके. सो आपको क्या करना है? हमेशा जब भी ये मैसेज आएगा तो आपने क्लिक करना है नो पे, ओके. कुकीज़. A cookie is a small text message that a web browser stores on your computer to keep track of your websites. Cookies files typically contain data about you, such as your username, postal code, or viewing preferences. Websites use cookies for a variety of purposes. Most websites that allow for personalization use cookies to track user preferences. Some websites use cookies to store username and or passwords so that users do not need to enter this information every time they sign into the website. Online shopping sites generally use cookies to keep track of items in a user's or shopping cart. Other websites use cookies to track how often users visit a website. कुकी आपका एक बहुत ही छोटा सा टेक्स्ट मैसेज होता है जो कि वेब ब्राउज़र स्टोर करता है कंप्यूटर में, जो कि वेबसाइट्स की को ट्रैक रखता है. तो कुकी फाइल जो टिपिकली वो
इनमें डेटा होता है, जैसे कि आपके बारे में आपका यूजर नेम, पोस्टल कोड या व्यूइंग प्रेफरेंसेस। ओके, तो वेबसाइट जो है कुकीज़ का यूज़ करते हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए। तो बहुत सारी वेबसाइट जो है वो अलाउ करती हैं पर्सनलाइजेशन यूज़ कुकीज़ का किसी यूज़र की प्रेफरेंस को ट्रैक करने के लिए। कुछ ऐसी वेबसाइट जो हैं जो कुकीज़ का यूज़ करती हैं यूज़र का नाम, उसका पासवर्ड स्टोर करने के लिए। ओके, ताकि यूज़र को इन्फॉर्मेशन अगली बार ना डालनी पड़े जब भी वो आपका साइन इन करे वेबसाइट पे। ऑनलाइन शॉपिंग साइट जो होते हैं वो जनरली कुकीज़ का यूज़ करते हैं ताकि वो जो यूज़र का शॉपिंग कार्ट है ना उसके आइटम को ट्रैक कर सकें। और बाकी जो वेबसाइट्स हैं वो कुकीज़ का यूज़ करती हैं कि कितनी बार जो यूज़र है उसने उस वेबसाइट को विजिट किया उसका ट्रैक रखने के लिए, राइट। प्रिकॉशंस: some websites sell or trade information stored in your cookie to advertisers. If you do not want personal information to be distributed, you should limit the amount of information you provide to a website or adjust how your browser handles cookies. Clear or disable cookies in your browser. Most modern browsers allow users to decide whether to accept cookies and the time frame to keep them. However, rejecting cookies makes some websites unreadable. अच्छा, तो आपको प्रिकॉशन क्या रखनी है? कुछ वेबसाइट जो हैं वो सेल करते हैं या ट्रेड करते हैं इन्फॉर्मेशन का जो कुकीज़ में स्टोर्ड होती है एडवर्टाइजर्स को। अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो आपको लिमिट करना चाहिए अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आप एक वेबसाइट को प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, क्लियर और डिसेबल कुकीज़ आपके ब्राउज़र में होना चाहिए, क्लियर उनको कर दें। ज़्यादातर जो मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं वो अलाउ करते हैं यूज़र को कि वो डिसाइड करें कि इन कुकीज़ को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। हालांकि जैसे अगर आपने रिजेक्ट कर दिया कुकीज़ को तो कुछ फिर वेबसाइट्स आपकी अनरीडेबल हो जाती हैं, आप उसे रीड नहीं कर पाते, राइट। नेक्स्ट, vulnerabilities. Vulnerabilities are flaws in a computer software that weaken overall security of your computer. They can also be created by improper computer or security configuration. Cyber criminals like hackers or crackers exploit such weaknesses and damage the computer or tamper its data. वल्नरेबिलिटीज़ आपके फ्लॉज होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो कि आपकी जो कंप्यूटर की ओवरऑल जो सिक्योरिटी है उसे वीकन कर देते हैं। इनको क्रिएट किया जाता है इम्प्रॉपर कंप्यूटर या सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। साइबर क्रिमिनल्स होते हैं लाइक जो आपके हैकर्स या क्रैकर्स होते हैं वो ऐसे वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर कंप्यूटर के डेटा को डैमेज या टैम्पर करते हैं। ओके, प्रिकॉशंस: कीप सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी पैचेस अप टू डेट. Configure security settings for your operating system and internet browser. Install an antivirus and keep it updated to block threats targeting vulnerabilities. Clear cookies in your browser. तो आपको क्या करना है? सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी पैचेस को अप टू डेट रखना है। ओके, सिक्योरिटी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर रखना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। एंटीवायरस को इंस्टॉल करना है और उसको अपडेटेड रखना है ताकि जो भी थ्रेट्स हैं उसको ब्लॉक कर सके, और कुकीज़ को क्लियर रखना है अपने ब्राउज़र में। Okay, cyberbullying. Cyberbullying is a harassment that takes place using technology, which includes sending or forwarding threatening text messages, posting embarrassing or altered pictures of someone without his or her permission, or setting up a fake online social network page where others make harsh comments and spread rumors about someone. Teenagers face the problem of cyberbullying most often. Cyberbullying एक harassment है जो आपका टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है, जिसमें मतलब कि थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजे जाते हैं, किसी की ऑल्टर्ड पिक्चर या एम्बैरेसिंग पिक्चर पोस्ट की जाती है बिना किसी की परमिशन के, या फेक ऑनलाइन सोशल नेटवर्क पेज को सेटअप किया जाता है, उसमें हार्श कमेंट्स किए जाते हैं, रूमर्स फैलाई जाती है किसी के बारे में। ओके, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है साइबर बुलिंग की वो टीनेजर फेस करते हैं। प्रिकॉशंस: never give your personal information and password to any unknown person. They can use this information to harass you. Check for privacy settings, usually found on the settings on most social networking sites, to set permissions. In this way, you can control who can review your profile and photos, make comments, and if desired, block certain people from viewing your page. You should search a name or major search engine such as Google on regular basis. If any personal information or photo appears which may be used for cyberbullying, you must take an action to remove it. Installation of filtering software on the computer can protect teenagers from viewing inappropriate content online. तो देखिए, कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड है, किसी भी अननोन पर्सन को ना दें। ओके, क्योंकि वो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपको हरास कर सकते हैं। इसके बाद प्राइवेसी सेटिंग जो आपकी उसको चेक करें। ओके,
और इसके बाद उसमें परमिशन को सेट कर दें, जैसे कि आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी फाइल या प्रोफाइल या फोटोज़ को कौन रिव्यू कर सकता है, कौन कमेंट कर सकता है, ओके। और अगर ज़रूरत हो, अगर आपको लगता है कि कोई अनोइंग पर्सन है तो आप उसे ब्लॉक करें, ओके। किसी भी सर्च इंजन पे अपना नाम जो है वो सर्च करें। अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फोटो अपीयर हो रही है, दैट मीन्स इसको साइबर बुलिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो आपको इसको रिमूव करने के लिए एक्शन लेना चाहिए, ओके। फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर का जो इंस्टॉलेशन है कंप्यूटर पे, वो टीनेजर्स को प्रोटेक्ट कर सकता है कोई भी इनअप्रोप्रिएट जो कंटेंट वो ऑनलाइन देखते हैं उससे, ओके। हैकिंग, the term hacker refers to someone who accesses a computer or network illegally. This is known as hacking. This can happen either for positive or negative reasons. Some hackers claim the intent of their security breaches is to improve security. Other hackers develop computer malware or virus to gain access to confidential information. A cracker is someone who also accesses a computer or network illegally but has the intent of destroying data, stealing information, or carry out other malicious action. Both hackers and crackers have advanced computer and networking skills. हैकर का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो कंप्यूटर को एक्सेस करता है या नेटवर्क को इलीगली, इसे हैकिंग भी कहा जाता है, जिसके बारे में आपने अक्सर सुना भी होगा। तो ये पॉजिटिव रीज़न की वजह से भी होता है, वैसे ज़्यादातर नेगेटिव रीजंस की वजह से होता है, बट पॉजिटिव भी होता है। कुछ हैकर्स जो हैं वो क्लेम करते हैं, वो सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं ताकि वो सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सके, दिस इज़ पॉजिटिव। कुछ हैकर्स जो हैं वो कंप्यूटर मालवेयर या वायरस को डेवलप करते हैं ताकि उनको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिले किसी पर्सन की, तो दिस इज नेगेटिव। एंड क्रैकर वो पर्सन होता है जो कि कंप्यूटर को एक्सेस करता है, नेटवर्क को इलीगली एक्सेस करता है, ओके, और उसका इरादा होता है डेटा को डिस्ट्रॉय करने का या इंफॉर्मेशन को चुराने का, ओके। तो हैकर्स एंड क्रैकर्स ये एडवांस कंप्यूटर और नेटवर्किंग स्किल्स इनके पास होती है, कमाल की, okay. Precautions: you should make a strong password and change it frequently. Your password should be at least 6 characters long and include at least one number, letter, combination of upper and lower cases, and special characters like these punctuation marks. Do not use your date of birth, name, or any sensitive information as your password. It is strongly advised that you use different passwords for different accounts. आपको हमेशा जब भी आप पासवर्ड चूज़ करें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें। इसमें कम से कम आपके 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ओके। एटलीस्ट एक नंबर, लेटर होना चाहिए या कॉम्बिनेशन हो अपर लोअर केस का, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। कभी भी अपने डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड में यूज़ ना करें, ओके, या कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। और आपको एडवाइस किया जाता है कि डिफरेंट अकाउंट्स के लिए डिफरेंट पासवर्ड्स आप रखें। सोशल इंजीनियरिंग. Social engineering is a term used for gaining unauthorized access or obtaining confidential information by taking advantage of the trusting human nature of victims. It is the art of convincing people to reveal confidential information, such as usernames and passwords on the phone, in person or on the internet. Human nature of trust is the basis of such social engineering attacks. Social engineers are aware of the fact that most people are unaware of their valuable information and are careless about protecting it. They obtain information from users who do not conceal information properly. सोशल इंजीनियरिंग एक टर्म है जिसमें देखिए ये यूज़ किया जाता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस गेन करने के लिए, मतलब किसी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को obtain किया जाता है, ओके, बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ट्रस्टिंग ह्यूमन नेचर ऑफ विक्टिम्स। ये आर्ट है लोगों को कन्विंस करने की, लोगों की कि वो अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दें, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड फ़ोन पे, ओके, या इंटरनेट पे, और उसके बाद फिर इसका मिसयूज़ करें। तो सोशल इंजीनियर्स को पता है, वो अवेयर रहते हैं कि जो लोग हैं अपनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो उनकी है उससे वो अनअवेयर है, ओके, और उसको प्रोटेक्ट भी वो नहीं करना चाहते, केयरलेस होते हैं, तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़र से क्या करते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। फेजेस इन सोशल इंजीनियरिंग अटैक. Research on the target person or a company. From websites, employees store information, etc. Select the victim. Identify the frustrated employees of the target. Develop relationship with the selected employees and exploit the relationship. Collect sensitive and financial information. Okay. तो social engineering attack के phases क्या हैं? सबसे पहले तो रिसर्च करना है टारगेट पे, कोई पर्सन है या कंपनी, ठीक है, वेबसाइट से, एम्प्लॉय से, टोर इन्फॉर्मेशन के जरिए। फिर विक्टिम को सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय है उसको आइडेंटिफाई करना है, रिलेशनशिप डेवलप करना है उस सिलेक्टेड एम्प्लॉय के साथ, ओके, फिर उससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसके बेसिस पे फिर उसको एक्सप्लॉइट करना है, ओके।
Precautions. Verify the identity of the person or organization requesting personal or confidential information. While relaying personal or confidential information, ensure that only authorized people hear your conversation or get the information. When personal or confidential information appears on a computer or mobile device, ensure that only authorized people can see your screen. Shred all sensitive or confidential paper documents after use. After using a public computer, clear the history in its browser. Avoid using public computers to conduct banking or other sensitive transactions. कभी भी देखिए जो पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करें. ओके जब भी आप किसी पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये मेक श्योर करें कि जो ऑथोराइज लोग हैं सिर्फ वही आपकी इस कन्फर्मेशन आपकी जो कॉन्वर्जेशन है उसको सुने इन्फॉर्मेशन के लिए. पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपकी जब भी कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पे आपकी अपीयर होती है तो इंश्योर करें कि सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग ही उसे देख सकें. जितना भी जो कॉन्फिडेंशियल या सेंसिटिव पेपर डॉक्यूमेंट्स है यूज़ करने के बाद उसको श्रेड कर दें. और पब्लिक कंप्यूटर अगर आप यूज़ करें तो ब्राउजर हिस्ट्री को क्लियर कर दें. पब्लिक कंप्यूटर्स को अवॉइड करने अगर आप कोई भी सेंसिटिव या बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं. ओके डिजिटल फुटप्रिंट. Every time you surf the internet, you leave a trail behind known as digital footprint. Whatever activity you perform on the internet, such as checking mails, filling forms, online banking, buying and selling things, and posting on social networking leaves traces of your personal information online. This information can be seen by other users. Open the history section of your browser and you can see all the websites you have visited in the past. Everyone who uses the internet has a digital footprint, so it is not something to be worried about. However, it is wise to consider what trail of data you are leaving behind. Okay, जब भी आप इंटरनेट को सर्व करते हैं तो एक आप ट्रेल यू लीव अ ट्रेल बिहाइंड, जिसे हम कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट. तो कोई भी एक्टिविटी आप इंटरनेट पे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मेल्स चेक कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ओके, तो यू ऑलवेज लीव ट्रेसेस ऑफ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. ये इस इंफॉर्मेशन को दूसरे भी देख सकते हैं. तो आप अपनी हिस्ट्री सेक्शन आपके वेब ब्राउज़र की ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स को विजिट किया पास्ट में. जो भी इंटरनेट का यूज़ करता है उसके पास डिजिटल फुटप्रिंट होता है उसका. सो वैसे जो है देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट. बट हाँ, ये आपका ये सलाह दी जाती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह का जो ट्रेल ऑफ डेटा है यू आर लिविंग बिहाइंड. ओके प्रिकॉशन. कीप योर प्राइवेसी सेटिंग्स एज हाई एज पॉसिबल. Never post personal information such as home address, telephone number or office address of your family members. Never upload or download inappropriate pictures or videos. Never post inappropriate matter about any person because your post is public. तो देखिए आपको अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को बहुत ही हाई रखना है जितना पॉसिबल हो सके. पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कभी भी शेयर नहीं करना है. ओके कभी पोस्ट नहीं करना है. कभी भी इनअप्रोप्रिएट पिक्चर या वीडियो उसको ना तो अपलोड करें ना ही डाउनलोड करें. कभी भी इनअप्रोप्रिएट मैटर पोस्ट ना करें कभी किसी भी पर्सन के बारे में. ओके क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो पब्लिक होती है. इफ यू सी समथिंग ऑनलाइन that makes you feel uncomfortable, unsafe or worried, leave the website and turn off your computer. If you want, tell a trusted adult immediately. When you use a public computer, make sure you log out of the accounts you have access before leaving the computer. Okay. अगर आप ऑनलाइन आपको ऐसे कुछ चीज़ें दिखती हैं जिससे आप अनकंफर्टेबल या अनसेफ या वरीड फील करते हैं, वेबसाइट को छोड़ दें, कंप्यूटर ऑफ कर दें और इसके बारे में अपने किसी ट्रस्टेड अडल्ट को ज़रूर बताएं. जब भी पब्लिक कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं मेक श्योर आपने जितने भी अकाउंट वहाँ पे ओपन किया उससे आप लॉग आउट करें. ओके. Role of parents and teachers. The growth and popularity of technology, especially the internet, has brought up a digital generation which excites as well as worries parents and teachers. So both parents and teachers have to play their role and protect their children in the virtual world. देखिए अब देखिए ग्रोथ एंड पॉपुलैरिटी टेक्नोलॉजी की इतनी हो गई है, स्पेशली इंटरनेट की. इसकी वजह से जो है डिजिटल जनरेशन, इट हैज़ ब्रॉट अप अ डिजिटल जनरेशन जो पेरेंट्स और टीचर को एक्साइट तो करती है साथ ही साथ वरी करती है. तो इसीलिए पेरेंट्स एंड टीचर्स को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है ताकि बच्चों को वो बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें इस वर्चुअल वर्ल्ड में. ओके. पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड एडवाइज चिल्ड्रन टू प्ले ओनली दोज ऑनलाइन गेम्स विच आर सूटेबल फॉर देयर एज. Parents and teachers should advise children that most social networks are not suitable for children under 11 to 12 years of age. They should be an active part of the children's online life.
At the same time, they should gain their trust as far as the use of internet is concerned. तो देखिए, पेरेंट्स एंड टीचर को अपने बच्चों को एडवाइस करना चाहिए कि वही गेम खेले जो उनकी एज के अकॉर्डिंग सूटेबल हो, ओके और उनको बच्चों को एडवाइस करना चाहिए कि कौन सी नेटवर्किंग साइट्स उनके लिए सूटेबल नहीं है, ओके चिल्ड्रन की ऑनलाइन लाइफ का उनको एक्टिव पार्ट बना रहना चाहिए और सेम टाइम पे उन्हें बच्चों का ट्रस्ट भी गेन करना चाहिए, ओके They should advise children not to share any personal information to any unknown person. They should make such environment at home and at school so that children can discuss their internet related problems openly without hesitation. तो देखो, उनको बच्चों को एडवाइस करना चाहिए कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी अननोन पर्सन के साथ ना शेयर करें. ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें होम में, घर पे या स्कूल में कि बच्चा जो है अपनी इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके बिना हेजिटेशन के, राइट. They should advise children to create a strong password for every account, such as mail account, and keep on changing password after a certain period of time. Most importantly, never share it with anyone. Internet is full of objectionable content such as violence and obscene material. Parents and teachers should use content filtering to restrict access of minors to inappropriate sites. Okay, children को एडवाइस करना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करे हर अकाउंट के लिए, ओके और उसको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेंज करते रहे. और सबसे बड़ी बात कि किसी के साथ शेयर ना करें. अब इंटरनेट में देखिए आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो ऑब्जेक्शनेबल होता है, जैसे वायलेंस है, राइट. तो पेरेंट्स एंड टीचर्स को क्या करना चाहिए, कंटेंट फिल्टरिंग का यूज़ करना चाहिए ताकि जो माइनर्स उसको एक्सेस ना कर पाए, ओके. Let us not forget that internet is an excellent tool for education, entertainment and communication. Parents and teachers should be aware that the online world is here and the only thing they can do is to prepare their children, students to become better, responsible digital citizens. Okay. Internet ये नहीं बोलना चाहिए बहुत ही अच्छा टूल है आपकी एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन के लिए, ओके. ऑनलाइन वर्ल्ड इज हियर एंड हम जो पेरेंट्स एंड टीचर हैं हमसे ये कर सकते हैं कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने चिल्ड्रन को या स्टूडेंट्स को ताकि वो बेटर और रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन्स बने, ओके. इन अ नटशेल, इंटरनेट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स दैट लिंक्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स. Protecting ourselves is important when we want to send personal information over the internet. Phishing is a scam in which we receive an official or legitimate looking email message. Cyberbullying includes sending or forwarding threatening messages, posting embarrassing or altered pictures of someone without his or her permission. Social engineering is a term used for gaining unauthorized access or obtaining confidential information. Students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ओके. एंड जितना भी इसमें प्रिकॉशंस आपको दी गई हैं उनको आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ओके. तो चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं. टेक द करेक्ट आंसर. नंबर 1, a software that installs on your computer without our consent is dash. A cookie, B spyware, or C keylogger. And the answer is B spyware. 2, dash are irritating while web browsing and can also install viruses on a computer. A, antivirus, B, pop-up ads, or C, vulnerabilities. And the answer is pop-up ads. Okay, students, now you will do practice of the remaining questions of this chapter.